মহানগৰীৰ জ্যোতিকুছিৰ পদপথত অঘটন চিপ লৈ উলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ ভুৱনেশ্বৰ ডেকা নামৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ পদপথতেই থকা নিজৰ চাহৰ দোকানৰ সন্মুখত চিপ লোৱা অৱস্থাত লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এয়া হত্যা নে আত্মহত্যা গভীৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত বৰ্তমান ঘটনাস্থলীত উদালবাকৰা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ জ্যোতিকুছিৰ পদপথত চিপ লৈ উলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভুৱনেশ্বৰ ডেকা নামৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ পদপথতে থকা নিজৰ চাহৰ দোকানৰ সন্মুখত চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ এয়া হত্যা নে আত্মহত্যা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ঘটনাস্থলীত উদালবাকৰা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে মানুষৰ তেখেতৰ লেনদেন ঠিকেই আছিলে ধৰক অলপ ধৰক এতিয়া কি হৈছে এইটো পাৰ্চেণ্টেজটো মই নাজানো মোৰ খুৰা যিহেতু হয় তেখেত কাৰ মনত কি থাকে কোনো নাজানো হয় নহয় কিন্তু ইমানখিনি যে হ'ব যে গৈ পেলাই এইটো ভবা নাছিলোঁ জাষ্ট ফোন কল পাই পেলাই আহিলোঁ দেখিলোঁ এইটো বেয়া লাগিছে এতিয়া সামূহিকভাৱে ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া কি হৈছে কি হ'ব কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত নিশা এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষীৰ গুলীচালনাৰ পিছতে বদৰপুৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া চন্দন গোস্বামীক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে এজন আসামিক ধৰিবলৈ গৈ এজাই গুলীচালনা কৰিছিল ওচি গোস্বামী গুলীচালনাৰ পিছতে উত্তেজিত ৰাইজে থানা ঘেৰাও কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ৰুহুল আমিন নামৰ এটা আসামিক ধৰিবলৈ গৈছিল আৰক্ষীৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল ৰুহুল আমিন একাংশ লোকে আৰক্ষীক বাধা প্ৰদান কৰিছিল যাৰ বাবে পৰিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ পৰে বিভিন্ন সংখ্যালঘু নেতাৰ উপস্থিতিত ৰাজপথলৈ ওলাই আহে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে পৰিস্থিতি ইমানেই উত্তপ্ত হৈ পৰে যে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় ইপিনে নিশাৰ ভিতৰত নতুন ওচিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে দীপেন কলিতাক পৰিস্থিতি যথেষ্ট অৱনমিত হোৱাৰ বাবে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া চন্দন গোস্বামীক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে এটা আসামী কৰায়ত্ব কৰিবলৈ গৈছিল কিন্তু আসামী কৰায়ত্ব কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছিল একাংশ লোকে যাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হয় পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এজাই গুলীচালনা কৰিছিল ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া চন্দন গোস্বামী আৰু তাৰ পিছতে ক্ৰমাৎ পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰে উত্তেজিত জনতাই পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী থানা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে আৰু অৱশেষত ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হ'ল ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া চন্দন গোস্বামীক আচ্ছা আপোনালোকে শুনি লওক জাষ্ট মই এছ পি ছাৰৰ কথা পাতিছোঁ আপোনালোকে মাত নামাতিব যদি মাত মাতিব আছে মই একো নকওঁ আপোনালোকক হ'ল ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ বাৰু জাষ্ট মই এছ পি ছাৰে কৈছে আপোনালোকৰ কমপ্লেইন পেটিশ্যনখিনি মই এছ পি ছাৰক ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ অচি ইমিডিয়েটলি এতিয়া ক্ল'জ কৰি আছে হ'ব আপোনালোকৰ এতিয়া নতুন নেটৱৰ্ক 18ৰ ৰাইজিং ইণ্ডিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছক ক্ষুদ্ধাৰ সমালোচনা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে কি ক'লে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুনোৱা হওক हमारा जो कानून था वो कानून में एक प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 साल की सजा होती है तो 3 महीने का समय उसको मिलेगा अपनी सजा को स्टे कराने के लिए सजा को स्टे कराना और दोष को स्टे कराना दो अलग बात है तो दोष को भी स्टे कराना है सजा को भी स्टे कराना है जी। और हमारे कानून में प्रोविजन ही नहीं है कि जिस अदालत किसी भी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक सजा करती है वो दोष पर रोक लगा सकती है कन्विक्शन स्टे नहीं हो सकता जी सेंटेंस हो सकता है अब एक लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है 2013 में उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तय कर दिया कि 3 महीने आपको नहीं मिलेंगे क्यों देना है चुने हुए प्रतिनिधि कोई विशेष प्रायोरिटी क्यों एंजॉय करे जिस क्षण से आपको सजा होती है उसी क्षण से आपकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक है 2013 का है जब राहुल जी की माता जी के नेतृत्व में यूपीए चलता था हम तो दूर दूर तक नहीं थे अब ये जजमेंट आने के बाद हम तो आज भी सुधारना नहीं चाहते जजमेंट को
मगर कांग्रेस सरकार सुधारना चाहती थी क्योंकि वो लालू जी को बचाना चाहती थी। एक ऑर्डिनेंस लेके आए मनमोहन सिंह जी और इसको नॉनसेंस कर श्रीमान राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने अपने ही सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। अब उनके फाड़ने के बाद किसकी मजाल थी कांग्रेस सरकार में कि इस ऑर्डिनेंस को कानून में बदले, विड्रॉ कर लिया गया जी। आज अगर वो कानून होता तो वो शायद बच जाते, इतनी हाई तौबा नहीं करनी पड़ती। और दूसरी बात, उन्होंने अब तक अपने दोष पर रोक लगाने के लिए, कन्विक्शन पर स्टे लेने के लिए अपील भी नहीं की है। किस प्रकार की एरोगेंसी है? आपको फेवर चाहिए, आप मेंबर पार्लियामेंट बने रहना चाहते हो और अदालत के सामने भी नहीं जाओगे? ये किस प्रकार की एरोगेंसी है? कहां से जनरेट होती है ये एरोगेंसी? कहां से जनरेट होती है? और ये श्रीमान पहले नहीं है, अब तक राजनीति में उनसे ज्यादा बड़े पद पर रहे हुए और उनसे भी ज्यादा अनुभव रखने वाले ढेर सारे नेता इसी प्रावधान के तहत अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। मैं 3 नाम तो आपको अभी भी गिना सकता हूं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव इसका सबसे पहला भोग बने, उसके बाद जयललिता जी बनी और राशिद अलवी जी बने। ऐसे 17 लोग इंक्लूडिंग राहुल गांधी, सबकी सदस्यता गई है। किसी ने काले कपड़े नहीं पहने, किसी ने हाई तौबा नहीं की, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देश का कानून है। मगर अब इन पर आ गई तो कांग्रेस वाले कहते हैं गांधी फैमिली के लिए एक अलग कानून बनाना चाहिए। मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूं, किसी एक परिवार के लिए इस देश में अलग कानून बनना चाहिए क्या? ये देश की जनता ने तय करना है। किस मेंटालिटी में जीते हैं लोग? और फिर कुछ भी होता है तो मोदी जी पर आरोप करना, लोकसभा स्पीकर पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। अरे भाई, आप कानून पढ़ो, वो तो शायद नहीं पढ़ पाएंगे, मुझे मालूम है, समझ नहीं पाएंगे, परंतु कांग्रेस के बड़े बड़े वकील जो राज्यसभा में बैठे हैं और वकील होने के कारण ही बैठे हैं, वो लोग भी नहीं समझाते हैं कि भाई लोकसभा स्पीकर के हाथ में कुछ नहीं है। लोकसभा स्पीकर शायद 2 दिन के बाद भी कुछ करते हैं तो वो 2 दिन में एज अ मेंबर पार्लियामेंट आपने जो कुछ भी वक्तव्य दिया है वो लोकसभा को इरेज करना पड़ता, क्योंकि आपकी सदस्यता वो क्षण से जाती है जिस क्षण से आपको सजा होती। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की जी। अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा। अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने, तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया जी। मोदी जी के खिलाफ एसआईटी बनाई एक राज्य के मुख्यमंत्री के, कोई करप्शन का केस नहीं था। दंगों में इन्वॉल्वमेंट का केस करा फर्जी टाइप का, जो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हमने कोई हाई तौबा नहीं करी थी, कभी काले कपड़े पहनकर संसद को हमने जाम नहीं किया था भाई। और मैं बताता हूं नतीजा क्या आया। मुझे पकड़कर अरेस्ट किया, 90 में दिन ही बेल दे दी मुझे हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त प्रूफ ही नहीं है, और मैंने एक्विटल की एप्लीकेशन डाली। मुंबई की अदालत ने, मुंबई में केस चला, गुजरात के बाहर ले गए, कोई आपत्ति नहीं, मुंबई में चला। वहां कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सीबीआई ने राजनीतिक इशारों पर यह केस किया है, इसलिए हम अमित शाह को के खिलाफ के केस को और सारे आरोपों को खारिज करते हैं। हमने हाई तौबा नहीं की थी। और यही लोग थे, यही चिदंबरम बैठे थे, यही सोनिया जी नेतृत्व करती थी यूपीए सरकार का, यही मनमोहन सिंह थे, और यही राहुल गांधी सांसद थे। अब क्या हो गया भाई? और हमने तो आप पर जो केस करे हैं भैया, वो करप्शन के हैं, आपकी बदजुबानी का केस है। इस
प्रकार के फर्जी केस नहीं किए हैं। और केजरीवाल भी रोज छातियां पीटते हैं। भैया ये सारे निर्दोष हैं। तो जैन साहब कितने समय से अंदर हैं? काफी समय हो गया, 1.5 साल हो गया जी। क्यों बेल नहीं होता है? सिसोदिया जी कितने समय से अंदर हैं? क्यों बेल नहीं होता है? इस देश में अदालतें हैं भाई, सबने अपना केस लेकर अदालत के सामने जाना चाहिए। एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप करने की लिए मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, एक उंगली किसी के खिलाफ करोगे तो 4 उंगली आपके खिलाफ आती है, ध्यान रखना। और इस देश की जनता ने आपके समय में सब कुछ देखा हुआ है, मगर हमने कभी भी ऐसे काले कपड़े पहनकर, काली पगड़ियां, काली धोती, काला कुर्ता पहनकर नहीं, रोड पर नहीं निकले हम। वही कानूनी मामला है, निर्दोष है तो कानून में श्रद्धा होनी चाहिए, कानून छोड़ देगा आपको। জাগিৰোডত নিশা চোৰাং গৰু জব্দ। এখন বলেৰো বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 6টাকৈ চোৰাং গৰু। জাগিৰোড আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ গৰুকেইটা। গাড়ীখন তালাচী চলোৱাৰ সময়তে পলায়ন কৰে চালকে। জাগিৰোডৰ পৰা গুৱাহাটীৰ দিশে গৈ থকা অৱস্থাত জব্দ কৰে বাহনখন। পুনৰ জনাইছো, জাগিৰোডৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত জব্দ কৰা হয় এই বাহনখন। 6টাকৈ চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰিছিল। অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱাৰ উমান পাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে বাহনখনৰ চালকে। গৈ আছিলোঁ ঝাৰগাঁও ফালে, আমি কেছ এটা ইনকুৱাৰীত গৈ আছিলোঁ। যাওঁতে চিলভঙা হৈ গ'লোঁ। এতিয়া গাড়ী এখন দেখিলোঁ, মানে পূৰা ত্ৰিপাল দি বান্ধি আনিছে। আমি ভাবিছোঁ এইটো কি গাড়ী হ'ব পাৰে, চাওঁ বুলি আমি ঘূৰি আহিলোঁ গাড়ীখনৰ পিছত। গাড়ীখন ঘূৰাই আনি গাড়ীটো খুলিব লৈছোঁ যেতিয়া ত্ৰিপালটো, তেতিয়া মানুহজন ড্ৰাইভাৰ পলাই দিলে, দৌৰি দিলে। তাৰপৰা আমি চালোঁ, গৰু দেখিলোঁ। তাৰপিছত গাড়ীখন লৈ আহিলোঁ ইয়ালৈ থানালৈ। 6টা গৰু 6টা আছে। এইটো চোৰাং গৰু, কিয় ড্ৰাইভাৰ পলাই দিছে দৌৰি। পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ত লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।